Hello. Hello, my dear student. Okay. We are discussing the gravitation. Okay. So in this chapter, we are discuss about the universal law of gravitation. Okay. And for this, we are deriving the equation. Force we are getting is Gmm upon d square. Okay. The gravitational force between two objects is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of a distance between these two objects. And from that we are deriving gravitational constant G is equal to F d square upon m into m. And for that we are getting is Newton into meter square upon kg square. Okay. And the value of capital G we are getting is 6.67 into 10 to the power 11. Its value will be remain constant throughout the universe. Another formula we are deriving the acceleration due to gravity. Value of small g. Acceleration due to gravity. Okay. So this value we are getting is Gm upon r square. Okay, and the value of G we are getting is 9.8 meter per second square for the earth. If we are going on another planet, the value of G should be changed. Okay, and from this we are deriving the equation of motion. Okay, first equation we are getting is equal to V is equal to U plus GT. Second equation we are getting H is equal to ut plus half gt square, and third equation we are getting is v square minus u square is equal to 2gs. Okay, so we are discussing all these formulas and its definition and derivation, okay, in this chapter. So today we will going to solve a NCERT exercise given in your textbook. Okay, so NCERT exercise given in your textbook. Okay, so question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसमें सो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ. दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, शुरू में जिसका हम मास कंसीडर कर लेते हैं, उसका मास है m1 और m2, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कंसीडर करते हैं d. Okay, so according to the universal law of gravitation, the force applicable between this we are getting is G m1 m2 upon d square. Okay, as per the law of Newton's gravitation, we are getting force is G m1 m2 upon d square. Now what changes we are making over here? How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? ये जो distance है उनको हम half कर देते हैं, मतलब our new distance we are getting is d by 2. अब हमारा distance है वो क्या हो जाता है, half. So what is the f value we are getting? G m1 m2. इसको हम f1 बोलते हैं, इसको हम f2 बोलते हैं. मास विल बी रिमेन सेम, मास चेंज नहीं होगा, g विल बी रिमेन सेम, चेंज नहीं होगा, d हो जाता है d by 2. d we are getting is d by 2. So this value we are getting is a 4. Okay, G m1 m2 upon d square. We are getting this value is this. Okay, so this f2 value we are getting is 4 times of f1 value. It means if we are making distance is half, then force will become 4 times. Force हो है वो 4 times increase हो जाएगा, ठीक है. Now second questions हम लेते हैं, ठीक है, क्या दिया हुआ है? Gravitational force act on all the object in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than lighter object? ठीक है, इसमें क्या दिया है? Gravitational force act on all the object is proportional to their mass.
ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को हम यहां से ड्रॉप करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है वो हमारा लाइट ऑब्जेक्ट है, एक जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है, फिर भी ये दोनों ऑब्जेक्ट है वो क्यों एक ही स्पीड से नीचे आ रहा है? क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है, सो इट डिपेंड्स ऑन टू द एक्सेलरेशन वैल्यू g. It depends on to the acceleration value g, and value of g we are getting is equal to gm upon r square. Okay, we are getting, so g is not depend, okay, it's not depend on mass of object. ये जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्ट लाइट या हैवी है, इसका मास है, उसके जी डिपेंड नहीं है। जी विल बी रिमेन कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, सो दैट ऑल ऑब्जेक्ट, ओके, फॉल डाउन विथ सेम स्पीड। सेम स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट हैवी है या लाइट है, ऑल द ऑब्जेक्ट, ओके, वो है कम्स विथ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन वी आर गेटिंग g इज इक्वल टू, ओके, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट है वो नीचे आएगा, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन थर्ड क्वेश्चन? Okay, what is the magnitude of a gravitational force between the earth and 1 kg object on its surface? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक हमारे पास अर्थ है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m1 दिया हुआ है 1 kg. Okay, so here we have to find out the gravitational force. यहाँ पे हमें gravitational force find करना है, ठीक है, and mass of the earth is given, okay, mass of the earth is given is, okay, 6 into 10 to the power 24 kg, and this is on the surface of earth, so distance between this is nothing but a radius of earth. So value of r, radius of earth is given is 6.4 into 10 to the power 6 meter. This is nothing but a radius of earth. So according to the definition, f we are getting is equal to gmm upon r square. So value of g is 6.67 into 10 to the power 11. Mass of earth is 6 into 10 to the power 24. Mass of the object is 1 upon radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 6. ठीक है, अगर इनको हम सॉल्व करते हैं, सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू इज 9.7 न्यूटन. इट मींस दिस अर्थ इज अट्रैक्ट दिस ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स इज इक्वल टू 9.7 न्यूटन फोर्स से वो ये ऑब्जेक्ट इनको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or same as the force with which moon attract the earth? Why? ठीक है, क्या बोला है? एक अर्थ है, दूसरा है वो मून है. अब अर्थ है वो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं और मून है वो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं. सो दिस मास ऑफ ए अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए मून, इज ग्रेटर देन मास ऑफ मून. अर्थ का जो मास है वो मून के मास से ग्रेटर देन है. देन व्हाट अबाउट फोर्स? ये F1 और F2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, ये क्या होगा रिलेशन? ठीक है, तो एज वी नो दैट के एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज gm, ओके, m अपॉन d स्क्वायर. ये फॉर्मूला है हमारे पास. और ऑल्सो वी नो दैट कि दिस
gravitational law is follow the third law of Newton. It follow the third law of न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को फॉलो करते हैं और ये डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस. सो दिस बोथ फोर्स विल बी रिमेन सेम. सो द फोर्स F1 is equal to F2. This both force will be equal and opposite in direction. It follows the third law of Newton. Action reaction pair should be equal. Whether the mass of earth is much more than moon, it doesn't matter, but the gravitational force applied by the earth on moon and gravitational force applied by moon on earth will be remain same. वो फोर्स है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है. Now next question, question number 5th. Okay, if the moon attract the earth, then why does the earth not move towards the moon? यही क्वेश्चन को थोड़ा अलग बताया है. ठीक है, कि मून है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, और अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट कर रही है. तो मून है वो अर्थ, जैसे ये अर्थ है तो मून है वो अर्थ की ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है. मून है इट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, वो अर्थ के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है. बट व्हाई द अर्थ इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मून? अर्थ क्यों मून के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? व्हाट शुड बी द रीजन? रीजन क्या है यहाँ पे? ठीक है, तो रीजन यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ है. ये कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट, ठीक है, कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दिस एक्सेलरेशन वी आर गेटिंग इज इक्वल टू m इंटू जी. ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, फोर्स इतना होगा, वो m इंटू जी. मतलब यहाँ पे फोर्स इक्वल है, फोर्स दोनों का इक्वल है. यहाँ पे अर्थ जितना फोर्स मून पे लगाएगी उतना ही फोर्स मून अर्थ पे लगाएंगे. ठीक है, तो वो दोनों इक्वल है. मतलब मास ऑफ अर्थ इंटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ मून इंटू जी होगा. ये दोनों इक्वल होगा. अब दोनों जगह पे जी की वैल्यू क्या है? ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन जो आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स दोनों में इक्वल है. द मास ऑफ अर्थ इज मच मोर ग्रेटर देन मास ऑफ मून. तो अर्थ में जो होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज मच लेस देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन मून. मतलब मून शुड रोटेट अराउंड द अर्थ, इनको इतना एक्सेलरेशन मिलेगा. अर्थ शुड नॉट गेट द एक्सेलरेशन, उनका एक्सेलरेशन और निग्लिजिबल होगा. सो अर्थ इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मून बट मून इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ. ठीक है, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो वो अर्थ के आसपास रोटेट कर रहा है, तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करके फॉल कर रही है, अर्थ उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ इट्स मास इज मच मोर हैवियर. सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज डिपेंड ऑन टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. सो फोर्स विल बी रिमेन सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट, but the mass of earth is much more heavy as compared to mass of other objects, so it cannot produce the acceleration. So earth is not attracted toward the moon but moon is attracted toward the earth. So acceleration produced in moon, so moon is rotating around the earth but earth is not rotating around the moon. Okay, next question. क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? 6 क्वेश्चन में व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट? अगर दो ऑब्जेक्ट है इसके बीच में फोर्स में क्या होगा? अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है. ठीक है, तो उसमें क्या चेंज आएगा? द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल. अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो किस पे डिपेंड होगा? m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर पे डिपेंड रहेगा. तो फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है? मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल. एक ऑब्जेक्ट का मास है उसको हम क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं. ठीक है, तो व्हाट शुड बी द चेंज इन फोर्स? तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. सो दिस फोर्स विल बिकम्स ट्वाइस
ऑफ ए एफ, ठीक है, जो अगले बार फोर्स होगा वो फोर्स है, ये फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबलेट एंड ट्रिपलेट, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उनको हम डबल करते हैं, d1 है वो 2d लेते हैं, या तो d2 है उनको 3d लेते हैं, डबल और ट्रिपल करते हैं डिस्टेंस को, तो फोर्स में क्या चेंज आएगा, तो यहां पे ये फोर्स आएगा F1 m1 m2 अपॉन d की जगह क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा 4d स्क्वायर, सो दिस बिकम f बाय 4 आ जाएगा फोर्स जो है वो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, F2 है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स हुआ तो 9d स्क्वायर आएगा, सो वी आर गेटिंग इज F बाय 9, सो 4 से वो क्या आ जाएगा, F बाय 4 और F बाय 9 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया है, मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल, दोनों ऑब्जेक्ट का मास हम डबल कर देते हैं, इसको भी हम डबल करते हैं, ये मास को भी हम डबल करते हैं। अगर दोनों मास को डबल करेंगे तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, सो F वी आर गेटिंग इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F, जो ये F है वो उससे 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों मास यहाँ पे डबल होता है, 2 by 2 इट गिव्स 4, सो 4 टाइम्स हो जाएगा फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the importance of universal law of gravitation, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस है वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो करते हैं तो ऊपर थ्रो करने के बाद वो एक हाइट को अचीव कर से वंस अगेन इट फॉल डाउन ऑनटू द अर्थ, अर्थ पे वो वापस आता है, ठीक है, बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट। एक ये चीज हमें इससे साबित हो रही है, प्रूव हो रही है कि इफ वी आर थ्रोइंग एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट achieve some height and then after it comes into the downward direction, or any freely falling body is coming toward the downward direction, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि we comes to know that how the other planets are revolving around the sun, why the moon is revolving around the earth, why earth is revolving around the sun, ऐसे क्यों रहा है, इसके पीछे साइंस क्या है, सो दिस इज नथिंग बट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से वहां से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स दिस ऑल द प्लैनेट्स आर परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इन इट्स ऑर्बिट, ओके। ये इसका इंपॉर्टेंस है, ये चीज हम उनमें समझ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, कोई भी फ्री फॉल बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑलरेडी वी आर प्रूव्ड इट, इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है, g की वैल्यू है वो, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, कोई भी अर्थ है, ठीक है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके बीच जो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इनको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके, जिसके जरिए उनको एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, अमित बाय ए फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड, अमित है वो फ्यू ग्राम गोल्ड है उनको बाय कर रहा है एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड, वो पोल पे जाके कुछ गोल्ड है उनको बाय करता है, ठीक है, एंड ही हैंड ओवर सेम व्हेन ही मेट हिम एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे उसका दूसरा फ्रेंड मिलता है, उनको वो गोल्ड है वो दे रहा है, सो विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड ब्रॉट, इफ नॉट व्हाई, क्या दिया हुआ है, अर्थ
हुआ है, ये जो है वो इक्वेटर है और ये जो है वो पोल है। तो ये पोल रेडियस हमारा है, ये हमारा रेडियस ऑफ इक्वेटर है। ठीक है, यहां पे अमित क्या कर रहा है, गोल्ड बाय कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे गोल्ड का जो वेट होगा वो क्या होगा, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, उनका वेट होगा वो गोल्ड। अब वो गोल्ड को अमित यहां पे ले जाता है तो यहां पे उसका वेट क्या हो जाएगा, एम इंटू जी हो जाएगा। अब यहां पे जी की वैल्यू क्या है और यहां पे जी की वैल्यू क्या है, जो पोल है वहां पे जी वैल्यू क्या है, जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। आगे हमने थियरी क्लास में देखा था, क्योंकि ये जो रेडियस है ये रेडियस से कम है। ठीक है, तो ये रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। तो पोल पे ग्रेविटेशनल जो है ग्रेविटी उसकी वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे जो उनका वेट होगा, वेट ऑन द पोल इज ग्रेटर देन वेट ऑन द इक्वेटर। यहाँ जो इक्वेटर पे जो गोल्ड का वेट होगा, इससे पोल पे जो गोल्ड है उसका वेट ज्यादा होगा। तो ये हम यहाँ पे परचेस कर से यहाँ पे उसके फ्रेंड को बेच रहा है यही सेम वेट पे, तो वो उनको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे उसका वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जो वहां पे वेट दिखा रहा था वो वेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11. Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into a ball? एक हम पीस ऑफ पेपर लेते हैं, ठीक है, और दूसरा है वो पीस ऑफ पेपर से ही बनाया हुआ क्या है, बॉल लेते हैं, पेपर बॉल लेते हैं। ठीक है, ये दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं, बोथ आर फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट। ये सेम हाइट से ये दोनों को हम फ्री फॉल करवा रहे हैं। सो विच वन कमिंग फास्टर एंड विच वन कमिंग स्लोवर, दोनों पेपर ही है, एक ही पेपर का हम यूज कर रहे हैं। ये पेपर है उनको फोल्ड नहीं किया है, यहाँ पे पेपर को हमने फोल्ड करके बॉल बना दिया है। सो विच वन कमिंग फास्टर, तो ये है ये फास्टर आएगा और ये है वो स्लोवर स्पीड से नीचे आएगा। सेम पेपर है, फिर भी ऐसे क्यों हुआ, because here the speed is resist by air। एयर का जो रेजिस्टेंस है वो उनकी स्पीड को रेजिस्ट करेंगे, और एयर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एयर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द एरिया, कितना एरिया उसके कांटेक्ट में आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पेपर है तो ये ज्यादा एरिया पेपर का है वो अर्थ रेजिस्टेंस के कांटेक्ट में आएगा, तो यहाँ पे इस पे जो एयर रेजिस्टेंस लगेगा वो ज्यादा लगेगा। और यहाँ पे हमने बॉल बना दिया है तो एरिया छोटा हो गया, तो ये स्मॉल एरिया है वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो एयर उनको रेजिस्ट कम करेंगे। सो दिस बॉल, पेपर बॉल इज कमिंग फास्टर एज कंपेयर टू प्लेन शीट ऑफ पेपर। ठीक है, दोनों पेपर है पर दोनों सेम स्पीड से नीचे नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ओके, एंड एयर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टू द एरिया, जिसका ज्यादा एरिया है, ठीक है, उस पे वो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, और जहां पे एरिया कम है वहां पे वो फोर्स है कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज द स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना है, 1/6 जितना है। सो व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड ऑन द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका मास दिया हुआ है 10 kg। ठीक है, तो ये 10 kg दिया हुआ है, तो अर्थ पे इसका वेट कितना होगा, सो दिस वी आर गेटिंग m इंटू जी। अर्थ पे उसका वेट है वो क्या होगा, m इंटू जी। सो दिस वी आर गेटिंग 10 इंटू 9.8, सो वी आर गेटिंग इज 98 न्यूटन ऑन द अर्थ। अब मून के उनका वेट कितना होगा, तो मून जो है उस पे उनका वेट करेंगे तो m इंटू जी आएगा। मास तो सेम रहेगा, यहाँ पे जी कितना है
1/6 टाइम्स हो जाता है इसका जो होता है वो, ठीक है। तो उसका जो वेट है वो 6 टाइम्स उनका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मून पे उसका वेट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 16 न्यूटन, ठीक है। 16 न्यूटन वेट है वो मून पे होगा, अर्थ पे उसका वेट होगा 98 न्यूटन। ये डिफरेंस आएगा वेट में, बिकॉज बोथ ऑफ place the value of g should be different and g on the moon is 1/6 times the g on the earth है, ठीक है। next question, okay, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second। एक बॉल है जिसको हम वर्टिकली थ्रो करते हैं, जिसकी वेलोसिटी दिया है 49 मीटर पर सेकंड से ये बॉल है ऊपर थ्रो कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम टेकन टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ, टोटल टाइम हमें फाइंड करना है कि ऊपर जाएगा, ऊपर से वापस नीचे आएगा, इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा वो टाइम हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ जी यहाँ पे क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या प्लस होगा या माइनस होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो वैल्यू ऑफ जी क्या आएगी माइनस। अब यहाँ पे एक बार जब ऑब्जेक्ट आएगा तब वो क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे आएगा, सो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, कौन सी हाइट तक जाएगा, वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारी 49 into 49, we are getting okay 2g is minus 9.8 into h, so value of h we are getting is 49 into 49 upon 2 into 98, ठीक है, into 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो 48 इंटू यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे इनको ले जाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो 45 बाय डिवाइड बाय 2 इतने मीटर हाइट तक ये है वो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली वी आर गेटिंग इज 122 मीटर हाइट तक ये है वो ट्रैवलिंग करेगा। सेकंड आंसर में क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम हमें फाइंड करना है, ठीक है। टोटल टाइम हमें निकालना है कि कितने टाइम पे वो वापस आएगा। तो यहां से यहां तक का हम टाइम निकालते हैं, तो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस gt, ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 49, ओके, और g है माइनस 9.8 इंटू t, सो वी आर गेटिंग 49 इज इक्वल टू 9.8 इंटू t, सो t वी आर गेटिंग 49 अपॉन 98 इंटू 10, सो 2 और दिस इज 5, सो वी आर गेटिंग इज 5 सेकंड। तो यहां तक 5 सेकंड लगेगा ऊपर जाने, तो वापस ऊपर से नीचे जाने में भी कितना लगेगा 5 सेकंड। सो यहाँ पे टोटल टाइम हमें मिलेगा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 सेकंड। ये ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड, तो ऑब्जेक्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 122 मीटर्स हाई अचीव करेगा और उसको टाइम लगेगा 5 सेकंड। सो वंस अगेन वापस आने में 5, सो टोटल टाइम टेकन इज 5 प्लस 5 इज 10 सेकंड। Now next question, okay, question number 14. A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching to the ground. एक टावर है जिसकी हाइट दिया है 19.6 मीटर, यहां से एक बॉल है उसको हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विथ हाइट ऑफ 19.6 मीटर। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होगी
जीरो, क्योंकि हम उनको छोड़ रहे हैं, इनिशियल पोजीशन जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो जी कैसा आएगा, प्लस आएगा। हमें फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। ठीक है, हाइट हमें दिया हुआ है। ठीक है, सो विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ये आएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। सो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। ठीक है, अब यहाँ पे इनको 2 इंटू 9.8 करेंगे तो क्या आएगा, 19.6 इंटू 19.6 हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर करना है तो v क्या आएगा, 19.6 मीटर पर सेकंड। सो जब वो ग्राउंड पे आएगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 19.6 मीटर पर सेकंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 15. Okay, a stone is thrown vertically upward with initial velocity of 40 meter per second. Taking g is 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone and what is the net displacement and total distance covered by the stone. एक स्टोन है, इसको यहां से हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे जी की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हमें फाइंड करना है, ठीक है, कितनी हाइट तक ये ऑब्जेक्ट जाएगा, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट, डिस्टेंस ट्रैवल हमें फाइंड करना है, कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अब g की वैल्यू है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो g की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो वी कैन फाइंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके, सो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी 40 दिया है, 40 इंटू 40 इंटू 2 minus 10 into h. So h we are getting is equal to 40 into 40 upon 20. Okay, so this we are getting is 2, so we are getting is 80 meter height is travel by the object. Object है वो टोटल कितनी हाइट ट्रैवल करेगा, 80 मीटर हाइट ट्रैवल करेगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जाएगा और वापस ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तो यहां पे डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है 80, वंस अगेन वापस आएगा तो वंस अगेन डिस्टेंस ट्रैवल इज 80, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा 160 मीटर। और हमें फाइंड करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस। सो इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां पे था, यहां पे, अब ऊपर गया, वापस कहां है, नीचे। सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों कैसी है, सेम है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, सो डिस्प्लेसमेंट वी आर गेटिंग इज जीरो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the force of gravitation between earth and sun. अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। सन दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू दिया हुआ है, द मास ऑफ अर्थ इज गिवन इज 6 into 10 to the power 24 kg. Mass of the earth is given, okay, and mass of the sun is given 2 into 10 to the power 30. Mass of the sun is given 2 into 10 to the power 30 kg, and the distance between these two distance is given is between sun and earth is 1.5 into 10 to the power 11 meter. Okay, so what is the force? So force we are getting is gmm upon d square. So g is 6.67 into 10 to the power 11. Mass of sun is 2 into 10 to the power 30. Mass of earth is 6 into 10 to the power 24.
अपॉन डिस्टेंस इज 1.5 इंटू 10⁻11 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर मिलता है 35.6 इंटू 10⁻32, 35.6 into 10 to the power 32 Newton. So Earth is applied the force, or Sun is applied the force on Earth is equal to 35.6 into 10 to the power 32 Newton. इतना फोर्स है वो फोर्स लगेगा। Okay? Now next question. Okay, question number 17. क्या दिया हुआ है? स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाइट। एक टावर दिया हुआ है जिसकी हाइट दिया हुआ है 100 मीटर। यहां से एक स्टोन है, उनको हम फ्री फॉल कर रहे हैं। ठीक है, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with velocity of 25 meter per second. उसी टाइम पे यहां से एक ऑब्जेक्ट है, उनको हम वर्टिकली थ्रो करेंगे जिसकी वेलोसिटी दिया है 25 मीटर पर सेकंड। इतनी इनिशियल वेलोसिटी से उनको थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, सो कैलकुलेट व्हेन वेयर द टू स्टोन विल बी मीट। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि दोनों स्टोन है, ठीक है, एक कौन सी जगह पे मिलेगा, ये कौन सी जगह पे दोनों मिलेगा। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम हियर x एंड दिस डिस्टेंस 100 माइनस x। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब दोनों के लिए वैल्यू ऑफ g क्या रहेगी? यहाँ पे वैल्यू ऑफ g रहेगा, हम कैलकुलेट सिंपल करने के लिए 10 यूज करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू क्या होगी? प्लस, यहाँ पे g की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। और अब मान लेते हैं कि इसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो टाइम पे, तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 100 माइनस x। इसी टाइम पे ये दोनों है यहाँ पे मिलेंगे, तो कौन से डिस्टेंस पे मिलेगा वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वी हैव फॉर्मूला h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसका हम यूज करेंगे। तो यहां पे है, अब ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? x हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ओके, और प्लस हाफ, g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं और t स्क्वायर, t हमें दिया नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम मिलेगा x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे x और t के बीच का हमें रिलेशन मिल गया। अब इनको इधर से हम कैलकुलेट करते हैं तो इधर से क्या मिलना चाहिए हमें? सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे h है वो क्या है हमारा? 100 माइनस x, ये डिस्टेंस ट्रैवल होगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया है 25, सो वी आर गेटिंग 25 इंटू t प्लस हाफ। ठीक है, g की वैल्यू 10 है, t स्क्वायर, पर यहाँ पे g की वैल्यू क्या आएगी? माइनस, सो दिस वैल्यू वी आर गेटिंग इज माइनस 5t स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में x की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो इसमें हम x की वैल्यू रखते हैं तो वी आर गेटिंग 100, x इज इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25t इंटू माइनस 5t स्क्वायर। नाउ 5t स्क्वायर कैंसल, सो वी आर गेटिंग 100 इज इक्वल टू 25t। सो t वैल्यू वी आर गेटिंग इज 100 अपॉन 25, सो t वी आर गेटिंग इज 4 सेकंड। तो इसमें क्या हमें फाइंड करना है? कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर टू स्टोन विल बी मीट। ये दो स्टोन कब मिलेंगे? तो ये दो स्टोन है वो 4 सेकंड के बाद एक दूसरे को मिलेंगे। अब कौन से डिस्टेंस पे मिलेंगे? तो इनका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, सो x वी आर गेटिंग 5, t स्क्वायर वी आर गेटिंग 4 इंटू 4 इज 16, सो वी आर गेटिंग इज 80। सो वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग इज 80। okay? तो यहां से ये जो ऑब्जेक्ट है वो 80 मीटर ट्रैवल करेगा और ये जो ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर ट्रैवल करेगा। वहां पे ये दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है? A ball thrown up vertically, return to the
थ्रोवर आफ्टर 6 सेकंड। एक बॉल को है हम थ्रो करते हैं यहां से, तो बॉल ऊपर जाएगा, फिर रिटर्न होके यहाँ पे वापस आएगा, उसके लिए टोटल टाइम लगता है 6 सेकंड। टाइम टेकन टू गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, टोटल टाइम टेकन इज 6 सेकंड लगता है। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोवन अप। हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइंड करना है, कितनी वेलोसिटी से हमने वो थ्रो किया है। द मैक्सिमम हाइट इट रिच, ये कितनी हाइट है उसने ट्रैवल किया है वो फाइंड करना है, ठीक है। और इट्स पोजीशन आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकंड, t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टाइम गिवन इज 6 सेकंड, तो इसको ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, t1 इज इक्वल टू 3 सेकंड, और नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, t2 इज इक्वल टू 3 सेकंड। दोनों टाइम सेम रहेगा, ऊपर जाने का और नीचे आने का, तो ये टाइम हमारा सेम। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। अब इनको हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो जब वो ऊपर जाएगा तब यहाँ पे इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पे g की वैल्यू क्या आएगी, हम 10 लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अब ये सिचुएशन के लिए देखो तो हमें फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ v 0 दिया हुआ है, टाइम t है वो 3 सेकंड दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ g है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें हाइट भी फाइंड करना है और इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड करना है, दोनों चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वी आर गेटिंग v इज इक्वल टू u प्लस gt। सो फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये u है, यहाँ पे आएगा -10 इंटू 3, सो u वी आर गेटिंग इज 30 मीटर पर सेकंड। इतनी इनिशियल वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब हाइट कितना होगा, सो h वी आर गेटिंग इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ओके। सो h, अब हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई है 30, ओके, t हमें दिया हुआ है 3, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बिकॉज g माइनस है, 10 इंटू टी स्क्वायर, सो t3 square of 3 is 9, okay, so h we are getting is equal to 90 minus 45, so we are getting is 45 मीटर। सो ये कितनी हाइट अचीव करेगा, 45 मीटर है वो हाइट अचीव करेगा, सेकंड आंसर। और थर्ड आंसर में क्या फाइंड करना है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब 3 सेकंड पे क्या होगा, यहां से 3 सेकंड में टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 45 मीटर। अब यहां से वो वापस आ रहा है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकंड होगा, तब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वी कैन फाइंड आउट दिस हाइट, ये हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना है, तो ये सिचुएशन में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, जब वो डाउन आने का स्टार्ट करेंगे तब। टाइम यहाँ पे दिया है 1 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे g की वैल्यू क्या आएगी, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा g, ठीक है। उससे हमें h फाइंड करना है, सो h वी आर गेटिंग इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ओके। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये 0 हो गया, यहाँ पे हाफ आया, ये वैल्यू ऑफ g प्लस है 10 इंटू टी, यहाँ पे 1 सेकंड, ठीक है, क्योंकि हमें 4 सेकंड के बाद करना है, तो 3 सेकंड तो यहाँ तक लगते हैं, तो यहाँ पे 1 सेकंड है वहां पे फाइंड करना है, तो दिस इज 1, सो वी आर गेटिंग इज इक्वल टू 5 मीटर। सो ये 5 मीटर नीचे आएगा, सो अब उसकी पोजीशन क्या हुई, एस वी आर गेटिंग इज 45 माइनस 5, सो 40 मीटर पे वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट होगा आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, 40 मीटर की पोजीशन पे आएगा, ठीक है। सो हियर योर एक्सरसाइज इज ओवर, सो विथ दिस एक्सरसाइज योर चैप्टर इज कंप्लीट, ओके। इन दिस चैप्टर the concept okay, in this chapter we are study about the concept of gravitational force, universal law of gravitation, acceleration due to gravity, small g, its value, how it should be changed, okay, freely falling body,
the equation of motion for the freely falling body, and what is the difference between weight and mass, and we are solving the NCERT questions based on that. The some more topic given in this chapter is thrust, pressure, okay, density and Archimedes principle, okay. But as per the new syllabus of CBSE for this year, this topic is omitted from your syllabus. So at presently we are not going to discuss this topic, okay, because this topic is deleted this chapter for this year, okay. So if we are getting the time in afterward, so we will discuss this topic also, okay. But as per the new syllabus, this chapter is completed. So you have to revise, how to see video, you have to revise the chapter, you have to solve the numericals, and if any doubt is there, any query is there, so we are here to solve your doubts. Thank you and have a nice day.